Students, yesterday we have read about on equality first part. फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सी असमानताओं के बारे में पढ़ा जो हमारे देश में विद्यमान है। उसके बारे में एक कहानी भी पढ़ी। अब हम आगे अगली कहानी पढ़ेंगे। The second story is based on an incident that took place in one of India's larger cities and its common practices in most part of the country. दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। It is a story about Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in the city. They had the money and so paying the rent was no problem. यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है जो शहर में किराए पर मकान लेना चाहते थे। पैसे वाले थे इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। They went to a property dealer for help to find a place. The dealer informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent. वे मकान ढूंढने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने बताया कि कई खाली मकान हैं जो किराए पर मिल सकते हैं। They visited the first apartment and Ansaris liked it very much, decided to take it. However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मकान लेने का निर्णय किया, पर फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. दोनों ही प्रॉपर्टी डीलर और दंपति सुनकर आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। The same excuse was repeated in the second and the third apartment. उनके सामने दूसरे तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे उन्होंने भी यही बहाना बनाया। Finally, the property dealer told them they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. कुमार। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रख लें। The Ansaris were reluctant to do this and decided to look some more. इसलिए अंसारी दंपति ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने कोई और मकान देखने का डिसाइड किया। In the end, it took a whole month of looking at apartment before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. इसलिए अंत में एक महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। एक क्वेश्चन देखिए। Why do you think the Ansaris were being treated unequally? What would you do if you were in the Ansaris position and could not find a place to live because some people did not want to live next to you because of the religion you practice? आपके विचार से अंसारी दंपति के साथ असमानता व्यवहार क्यों किया जा रहा था? यदि आप अंसारी दंपति की जगह होते और आपको रहने के लिए इसकान जगह न मिलती क्योंकि कुछ पड़ोसी आपके धर्म के कारण आपके पास नहीं रहना चाहते तो आप क्या करते? नाउ वी विल रीड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, मानवीय गरिमा का मूल्य। You have understood by now that the caste were born into the religion were practiced, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण से होता है कि उनका जन्म किस जाति, धर्म, लिंग में हुआ है, वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि and the Ansaris are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion. ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता के व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारण से हुआ। ये क्वेश्चन देखिए। If you were one of the Ansaris, how would you have responded
to the suggestion that you change your name? Can you think of an incident in your life in which your dignity was violated? How did this make you feel? यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर किस प्रकार देते? क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो और आपको उस समय कैसा महसूस हुआ था? When persons are treated unequally, their dignity is violated. जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है. The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansaris was violated because of the way in which they were treated. ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची. By picking on him and making him sweep the school because of his caste, Om Prakash Valmiki's schoolmate and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. वाल्मीकि को उसकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उसके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उसे महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं है, उनसे कमतर है. Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in. बच्चा होने के कारण वाल्मीकि स्वयं इस बारे में कुछ नहीं कर सके. It was his father who, on seeing his son sweep, felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers. उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया. The Ansari's dignity was also hurt when person refused to leave their apartment to them. जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तो उनके भी सम्मान को वो चोट पहुंची. However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse that suggestion. जब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया नाम बदलने के प्रॉपर्टी डीलर के सुझाव पर और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया. ओम प्रकाश एंड द अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस. ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था. दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स. वे उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है. इक्वलिटी इन इंडिया डेमोक्रेसी. भारतीय लोकतंत्र में समानता. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल. भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समान मानता है. भारतीय संविधान दिस मीन दैट एवरी इंडिविजुअल in the country including male and female person from all caste, religion, tribes, educational and economic background are recognized as equal. इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे पुरुष हो स्त्री किसी भी जाति धर्म शैक्षिक आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो वे सब समान माने जाएंगे. दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी केसेस टू एग्जिस्ट. लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है. It does not, but at least in democratic India, the principle of the equality of all person is recognized. यह खत्म तो नहीं है लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है. No law existed to protect people from डिस्क्रिमिनेशन एंटिल ट्रीटमेंट. जहाँ पहले व्यक्तियों के साथ दुर्भावना और भेदभाव के लिए कोई कानून नहीं था. नाउ देर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एज एंड एज इक्वल्स. अब अनेक कानून लोगों के सम्मान और उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है. दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं. फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. व्हाट दिस मीन्स इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता ए डोमेस्टिक वर्कर हैज टू ओबे द सेम लॉज. प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है. इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू काम करने वाली महिला तक सभी को एक जैसे कानून का पालन करना है. सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन रेस कास्ट प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल.
दूसरा, किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। थर्ड, every person has access to all public places including playground, hotel, shop and markets. All person can use publicly available well, road and bathing ghat or untouchability has been abolished. तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ है अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड, और चौथा अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया, यानी छुआछूत को मिटा दिया गया है। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज guaranteed in the constitution is first through law and second through government programs or scheme to help disadvantaged communities. शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रम द्वारा सुविधाहीन समाज की मदद करके। There are several laws in India that protect every person right to be treated equally. भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। In addition to law, the government has also set up several schemes to improve the lives communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों के साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं चालू की है। These schemes are ensure greater opportunity for people who have not had this in this past. ये योजनाएं सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। One of the steps taken by government include the midday meal scheme. ये इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। दिस रेफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। दोपहर का भोजन स्कूल में दिया जाता है। तमिलनाडु वाज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम एंड इन 2001 the Supreme Court asked all state government to begin this program in their school within 6 months. भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में ये प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसमें अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। This program has had many positive effect. इसके काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। These include the effect that more poor children have been enrolling and regularly attending school. इसके ये सकारात्मक प्रभाव हुए कि दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित स्कूल आना शुरू कर दिया। टीचर रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved. शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल नहीं लौटते थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so. This program had also helped reduce caste prejudice because both lower and upper caste children in the school eat this meal together, and in quite a few places the little women have been employed to cook the meal. वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ जगह तो भोजन पकाने के लिए भी दलित महिलाओं को रखा गया है। The midday meal program also help reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomach are empty. ये मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थी भूख मिटाने में भी सहायता की है जो प्राय
खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। While government program play an important role in increasing quality of opportunity, there is much that still need to be done. यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big difference in our country between school that the rich attend and those that the poor attend. उपस्थिति तो बढ़ गई स्कूलों में, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीर के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। Even today there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. आज भी देश में कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता व्यवहार किया जाता है। These children are forced into an unequal situation in which their dignity is not respected. जहाँ उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है, ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है। This is because people refuse to think of them as equal even though the law require it. कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। One of the main reason for this is that attitude change very slow. इसका मुख्य कारण है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे परिवर्तन आता है। Even though persons are aware that discrimination is against the law, यद्यपि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status and because they are women. फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitude can change. वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle and one in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book. प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाज को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। Student, now write the answer of this question. Find out about one government scheme in your area. What does this scheme do? Whom is this scheme set up to benefit? अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए। इस योजना में क्या किया जाता है, यह किसके लाभ के लिए बनाई गई है। Now student, tomorrow we will read about issue of equality in other democracies. अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट।